Dear students, today we are taking the topic development of resources. This is an important topic from geography. The name of the chapter is resource and development. Uh, Development of resources. Resources are vital for the human being as well as for maintaining the quality of life. Resources जो हैं they are the essential one for the human survival. रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए फॉर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एसेंशियल वन एंड एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ और रिसोर्सेज जो हैं इफ़ यू वांट टू मेंटेन आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड. इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो है रिसोर्सेज जो हैं दे आर गिवन बाय God, they are the free gift of nature. As a result, human beings used them indiscriminately, and this has led to the following major problem. As a result, human being because of greediness, he used resources continuously, and this has led to the following major problem. और इसकी जो कई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं. फर्स्ट वन, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड of a few individuals. When the someone is greedy, these resources are satisfy them if they have a lot of money. That's why the resources are going to be depleted. Second point, जो accumulation of the resources in few hands, or if a human being continuously use the resources, it means the resources are accumulated in the few hands. रिसोर्सेज जो है वो कुछ हाथों में ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, विच इन टर्म्स जो वास्तव में जो है सोसाइटी को दो सेगमेंट्स में बांट देते हैं. एक तो हैव एंड हैव नॉट्स. मीन टू से there is a gulf between the rich and poor. Indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis. If the human being is continuously exploit the resources, due to it, it led to global ecological crisis such as the global warming, ozone layer depletions, environmental pollution and land degradation. अगर ये लगातार यूज़ किए जाते हैं रिसोर्सेज और उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता है तो इसकी वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर्स जो है वो बढ़ जाता है, ओजोन लेयर्स इज गोइंग टू बी डिप्लेक्टेड, ओजोन लेयर लुप्त होने लगती है, वैनिश होने लगती है, and environmental pollutions and land degradations is also occurred. An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. If we want that there is no disturbance in the life of the peoples, there is a need of an equitable distribution of resources. जो रिसोर्सेज हैं वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटेबल मैनर में हो, और जो गैप है बिटवीन द पुअर एंड रिच इट मस्ट बी रिड्यूज. इट हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ. और मिनरल्स जो है वो ज़रूरी हैं, वाइटल हैं, दे आर द वाइटल वन फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ. अगर हम लगातार जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसको जो है
लगातार ये ज़रूरी हैं, वाइटल्स हैं, और ड्यू टू द proper distribution of the resources, it will establish the global peace. If the present trend of the resources depletions by a few individuals and country continue, the future of our planet is in danger. जिस तरह से प्रेजेंट चलन जो चल रहा है, प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेक्शंस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली बाई ए फ्यू इंडिविजुअल्स और कंट्री, कुछ इंडिविजुअल्स के माध्यम से, और कुछ जो रिच कंट्रीज हैं, they are continuously exploiting the resources. Because of that, the future of our planet is in danger. इसकी वजह से जो फ्यूचर ऑफ हमारे प्लेनेट का है वो खतरे में पड़ रहा है. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all form of life. इसलिए जो है रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि लगातार सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ द all form of life could be existed. Sustainable existence is a component of the sustainable development. और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है वो एक पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. तो व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेकन प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो जो है डेवलपमेंट इस तरह का होना चाहिए दैट कुड नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को डैमेज ना कर सके. एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, और जो डेवलपमेंट प्रेजेंट में है, इट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. तो ये जो है we will also look after the need of the future generations. We must not any compromise with the future's present needs. तो इसलिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की डेफिनेशन आ जाती है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए है और प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट रिसोर्सेज को डेवलप करते हुए हमें जो फ्यूचर जनरेशन के साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि उनको भी जो है जो रिसोर्सेज हैं, दे आल्सो टेक द एन्जॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. इफ वी कंटिन्यूस going to deplete these resources, the future generations will not use them.